السلام علیکم ناظرین، کشمیر بٹن کے ساتھ حاضر ہوں میں ممتاز نام۔ ہیڈ لائنز پہ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پرتاپ پارک پر گرینیڈ حملے کے الزام میں 7 افراد گرفتار، پولیس نے کہا والدین اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں۔ ایل جی مرمو نے سری نگر میں عوامی دربار میں دی حاضری، لوگوں کے مسائل کی سماعت، ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کا دیا تیقن۔ شہریت ترمیمی قانون کو لے کر کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، ملک مخالف اور آسام مخالف ذہنیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کوکرا جھار میں وزیر اعظم کا خطاب۔ کپواڑہ کے مقامی نوجوانوں کا جے پور میں بے رحمانہ قتل، رشتہ داروں نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ۔ آگے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پرتاپ پارک سری نگر میں دستی بم حملے کے الزام میں پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ فروری کی 2 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ پولیس کے مطابق پرتاپ پارک میں گرینیڈ حملے میں ہی 7 افراد ملوث تھے۔ ایس ایس پی ڈاکٹر حسیب نے میڈیا کو تفصیلات بتلائی ہیں۔ سر 2 تاریخ کو یہاں پہ پرتاپ پارک میں ایک گرینیڈ ہوا جس میں 6 سویلین اور 2 سی آر پی ایف کے اہلکار جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی بہت افراتفری ضرور ہوئی، کچھ مارکیٹ بند ہو گیا اور باقی لوگوں میں بھی تھوڑی بھگدڑ مچ گئی، اور پولیس نے اس سلسلے میں جو ہے ایف آئی آر درج کیا اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی۔ انویسٹیگیشن کے دوران کیونکہ ایک میجر چیلنج ہے کہ لال چوک میں ہزاروں لوگ دن میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ٹریک ڈاؤن کرنا کہ کون یہ لوگ تھے اور کس لباس میں تھے، کیسے تھے، انہوں نے یہ کارروائی جو ہے کیسے انجام دی، اس کے انویسٹیگیشن جو یہاں پہ شروع ہوئی۔ جو پولیس ہماری ایسٹ زون کی پوری ٹیم ہے جو ہمارے ایس پی داؤد صاحب کی قیادت میں یہاں کام کرتی ہے، تو انہوں نے پوری اپنی ٹیم کو اور انویسٹیگیشن کے لیے گروپ تشکیل دیا۔ تو یہ گروپ جو ہے پوری طور سے جو ہمارے پاس سورس انفارمیشن ہوتا ہے، کچھ ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتے ہیں، کچھ سرویلنس میکینزمز ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے فوکس کیا، اور اس فوکس کے بعد کافی محنت کے بعد ہم 3 لوگوں کو گرفتار کرنے میں سب سے پہلا جو ہم نے اریسٹ کیا، جو کہ ایک نیٹ کی کوچنگ یہاں کر رہا تھا لڑکا، جو راج باغ میں رہتا ہے اور پلوامہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی فردر ڈیٹیلز میں ہم نے 2 اور ساتھی اس کے اریسٹ کیے ہیں، جو 2 پلوامہ سے ہیں اور 1 شپیاں سے ہیں، جس کی ڈیٹیل اور تفصیل نام وغیرہ آپ کو اس پریس ریلیز کے ذریعے ہم دے رہے ہیں۔ اس میں خاص چیز جو بتانے کی یہ ہے کہ ایک تو پولیس نے اس میں پورا دن رات کام کیا، اور ہماری ساتھ دینے کے لیے سی آر پی ایف بھی یہاں پہ تھی۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم لوگوں نے جو ریڈ کیا، ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم لوگوں نے سسپیکٹس کو اسکرین کرنے کے بعد ان کے تک پہنچے۔ صرف 4 دن کے اندر اندر ہم نے یہ پورا ماڈیول جو ہے وہ بسٹ کیا ہے۔ یہ ماڈیول جے ای ایم کا تھا، اور اس کا مین مقصد، جب ہم نے ان سے بات چیت کی، ان کو کوشچن کیا، تو ان کا مین مقصد تھا کہ جو لائف ایکٹیویٹیز یہاں پہ پک اپ ہو رہی ہیں، نارمل سی پورے شہر سری نگر میں آ رہی ہے یا ویلی میں آ رہی ہے، اس نارمل سی کو کس طرح سے ڈسٹرب کیا جائے اور ڈسٹرب کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ لائف ایکٹیویٹیز پک اپ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جبکہ یہ تینوں اسٹوڈنٹ ہیں، 2 12th پاس ہیں اور ایک گریجویشن سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن کچھ ریڈیکلائزڈ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے جنہوں نے ان کو اس راستے پہ ڈالا ہے۔ تو اس انویسٹیگیشن سے اور ان کے اریسٹ سے ایک بات ہم ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ سری نگر میں چاہے پولیس یا سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کا نیٹ ورک بالکل ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، اور وہ کسی طرح کی بھی چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کیس کو سالو کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پورے کمیٹڈ ہیں 100%۔
कि यहाँ पे पीस रेस्टोर हो और लाइफ एक्टिविटीज जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ आ जाएं और अच्छे से यहाँ पिकअप करें। पेरेंट्स को थोड़ा बहुत जिम्मेदारी और दिखानी पड़ेगी और अपने बच्चों को फॉलो अप करना पड़ेगा, उनकी मोबाइल्स और उनके लैपटॉप्स और उनके टैब्स को स्क्रीन करना पड़ेगा और उनका फ्रेंड सर्कल जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ना कहीं से यहाँ से सोपूर और सोपूर से पाकिस्तान तक जुड़ा हुआ है। तो ये ज़रूरत है कि अगर हम अमन चाहते हैं यहाँ पे तो हम इनके ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखें और हम दूसरी तरफ से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो खासतौर से सीआरपीएफ हमारे पास यहाँ डिप्लॉयड है, इसके बिहेस्ट पे आप लोगों को एश्योर कराना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अमन कायम हो और आने वाला जो समर और टूरिस्ट सीजन है यहाँ पे वो पुरअमन तरीके से गुजरे। So we will investigate the matter. Whatever are the facts of the investigation will go as per the ground. वादी कश्मीर खासकर शहरी श्रीनगर के साथ साथ दीगर जो इलाका जात है, यहाँ पर कई दिनों से जिस तरह श्रीनगर में ग्रेनेड हमले हुए और एनकाउंटर भी हुआ, तो जाहिर सी बात है अब सिक्योरिटी की जो तादाद है उसमें इजाफा भी किया गया है, जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं और शहरी श्रीनगर में इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए जहां पुलिस वहीं सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेस जो है वो अपना जो ऑपरेशन है वो बराबर जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो शहरी श्रीनगर के हसास इलाकों में इस तरह सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है ताकि जो वाक़यात ग्रेनेड हमले जो हुए हैं इस तरह के वाक़यात मज़ीद ना हो। दूसरी जानिब जिस तरह साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर ये से आयद किया गया है और देखने में अब यही आ रहा है कि जो यहाँ की सियासी क़यादत रही है इससे पहले उनकी जो नकल हमले उस पर रोक लगाने की बराबर कोशिशें हैं ताकि जो दफ़ा 370 के बाद हालात में बेहतरी मरकज़ी सरकार देख रही है उसमें कोई रखना डालने में कामयाब ना हो सके। दूसरी जानिब जो छोटे लीडरान हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जो हिरासत से रिहा तो किया जा रहा है, लेकिन उन पर भी नज़रें बराबर जमाई हुई है ये सरकार ताकि वो किसी भी तरह की सूरत हाल को बिगाड़ने में कोई रोल अदा ना कर सके। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो कौन सा रुख इख्तियार कर लेती है। तौकीर के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। और जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर लगाए गए PSA एक्ट की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि ये एक गैर इंसानी और गैर दस्तूरी अमल है। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, उसके बावजूद भी उन पर PSA लगाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बात कि जिन 3 लीडरों को बंद रखा है उसमें से एक फीमेल भी है जिसका बाप नहीं, जिसका हस्बैंड नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं, तो ये इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये गांधी के देश में ये कोई दरस नहीं देता। हम लोग इनको बंद रखने से क्या होगा, इनसे कोई चीज़ अचीव नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कहते हैं तो बात बनती है, जब कोई केस इनके ऊपर नहीं बनता तो आप क्या साबित करना चाहते हो और किस कानून के तहत इनको अंदर रखेंगे, बंद रखेंगे, कोई बात नहीं बनती। एक कमरे में आपने चीफ मिनिस्टर को, महबूबा मुफ्ती को बंद करके रखा है या बाकी लोगों को भी बंद करके रखा है। ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिनको ये भी नहीं पता बाहर के जेलों में जो लोग बैठे हैं और जिनको ये भी नहीं पता हमें किस वजह से, कौन से गुनाह से बंद रखा है। पार्लियामेंट ने उनको वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बनाया और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब जैसे हैं वैसे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट। एक बात। दूसरी बात, आपके फ़ोन लाइन शायद अभी भी नहीं चल रहे, आपका ब्रॉडबैंड अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो कौन सी बात पे कौन क्या कर सकता है। तो ये जायज़ नहीं है। मैं इस बयान पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को बंद रखा है ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है और इससे कोई भी चीज़ डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग अचीव नहीं कर सकते। वैक्यूम एक यहाँ बना हुआ है, इस वक्त पॉलिटिकली स्पेस काफ़ी ज़्यादा बनी है क्योंकि स्पेस फिलअप नहीं हो रही है और होगी भी नहीं। आने वाले दिनों में कैसे पॉलिटिकल स्पेस आपकी फिलअप होगी जबकि आपके पंचायत और BDC इलेक्शन में 60% लोगों ने हिस्सा ही। और श्रीनगर में LG लेफ्टिनेंट मुर्मू ने अवामी दरबार में शामिल होते हुए अवामी मसाइल की समाअत की है।
इस मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे जिन्होंने एलजी मुर्मू को अपनी शिकायतें पेश की हैं। मुर्मू ने तरक्याती कामों को फौरन मुकम्मल करने का भी तयक़ुन दिया है। प्लान बना रहे हैं, अब इतना ही बोलेंगे कि कैसे करेंगे, आप लोगों को साथ में रख के करेंगे। रिहेबिलिटेशन का करना है तो कैसे करेंगे, आपके साथ ही होगा। और सभी का सुविधा, और इसी तरह नहीं कहीं भी आपको लेके एकदम जहाँ खराब जगह है वहाँ बसा देंगे, ये सारे नहीं होगा। ये ह्यूमन अप्रोच रहेगा। जो भी होगा आप खुद मानते हैं लेक को बचाना है, जितना लेक बचेगा वो हम प्लान बनाएंगे और हम कोर्ट के उसी हिसाब से बात करेंगे। और जो रिहेबिलिटेशन होगा वो आप लोगों का सम्मति से और आप लोगों को कहा जाएगा, और आपका सुविधा और बाकी सारी सुविधा जो आपका कम्युनिटी। जयपुर राजस्थान में कुपवाड़ा के एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के वाक़े के बाद मुकामी नौजवानों ने इलाका कन्ननपुर पशपुरा कुपवाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा किया है। ज़राए के मुताबिक ज़िला कुपवाड़ा के कन्ननपोशपुरा गाँव के रहने वाले 21 साल गुलाम मुहिउद्दीन खान वल्द मरहूम खुर्शीद अहमद खान जयपुर में एक प्रोग्राम के दौरान कुछ नौजवानों के साथ मुबैना तौर पर मारपीट हुई, जिसमें गुलाम मुहिउद्दीन शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में गुलाम मुहिउद्दीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। गुलाम मुहिउद्दीन जयपुर की एक मुकामी होटल में मैनेजमेंट वेटर का काम किया करता था, जिस पर उसी होटल के कुछ दीगर मुलाजिमीन ने उस पर हमला किया था, जिसमें गुलाम मुहिउद्दीन शदीद जख्मी हो गया था। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों और वालिदा ने कातियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की मांग की है। यतीम बच्चे नमिस माज पाला यह बहुत गो नबर होटलस में मजूरी करने 5 लड़के ये तत खोत गाड़ में हिंद लड़को रोटुक तोगुक तो मोरुक तती बूज रात 1 बजे बूज लगमतिस गई 4 दह लगमतिस गई 4 दह मगर मन गई 4 रेत तोड़ 4 रेत तोड़ ूरम रेत तम ये मेन निचो मोरुक बस कर ऐलान बह मंड मज बह मसाफिरी मज मे 6 बच मे 6 बच 2 लड़के आसम कोड़ 4 मज हो क्या छम यतीम कोड़ छम हो क्या बस अम छप अम लगा रत छप अम वोदम जू इंसाफ मगर मे दी तम लड़के मेन निचो मोरुक इंसाफ मे दी खानदार त्रवाय जकल मज मीनस निच सुन बन बस कत बाज तेल क्या फायदे द्रा मीनस खानदार सुन सर्विस कर सह गुजरियामुत 2012 मज मगर मे पोल यह यतीमान लोग बालियन गसने बालियन वतित वोत गो नबर दोन बह कर ग मजूर करने मे और मा गस कि ये खेत चत रूजी तथ खम बह वला बात तुल बहर बान बिछत मा गस मजूर करने के वद या जू चला कि उसको लड़कों ने किसी लड़कों ने पीटा है। वो बोल रहे हैं कि मुंबई के उनने चोट लगाया उसे। वो यहाँ से मजदूरी करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से पता नहीं चला किसने पीटा। क्या हम भी उन लोगों के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं? यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, कोई भी आते हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? जी हम बस यही चाहते हैं कि कातिल को सजा मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इसको पीटा है उनको सजा मिलना चाहिए, सख्त से सख्त सजा। हम चाहते हैं इस वक्त जो ये हमारा वाक़ा हुआ है, ये हमारा बच्चा हमसे छीन गया है, इन कातिलों को निकालो और इनको सामने लाओ, इनको सजा दे दो। कितना सजा लगता है इनको? और जैसा मैं कहता हूँ, अगर मैं वहाँ होता मैं इसकी जेल ले लेता, जिसने इस बच्चे की। और ये बच्चा इसका बाप नहीं है, इसके चार बहनें हैं, छोटी छोटी 4 बहनें घर में बैठे हैं, और ये कमाने के लिए गया था। एक लड़का इनके पास कमाने के लिए, और खुदा के सिवा कुछ नहीं है। और सपोर नवापुरा कलान में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तालिबात अपने मुस्तकबिल को लेकर सख्त परेशान हैं। तालिबात का कहना है कि उनके माशियात इम्तिहानात के पर्चे में निसाब से हटकर सवालात किए गए हैं।
ये तालिबात BA के 5वें सेमेस्टर्स के इम्तिहानात दे रही हैं। उनका कहना था कि कॉलेज में लेक्चरर्स भी मौजूद नहीं थे, उनकी तालीम भी पूरी नहीं हो पाई और इस इंसाफ से हटकर सवालात उन्हें पूछे गए। तालिबात ने फौरन इंसाफ की मांग की है। का पेपर था, हमें हमारे सारा पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। 20 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे हो गए, लेकिन फिर हम फेल हो जाते हैं। हम डिमांड करते हैं कि हमें रिलैक्सेशन मिले या हमें डेट नया निकाले, हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना करे। हमें पता ही नहीं होता है कि क्या सिलेबस है और क्या पेपर पता नहीं। गूगल से निकालते हैं, रिसर्चर निकालता है, पता नहीं हमें क्या हमारे फ्यूचर का क्या होगा। सर हम यहाँ पे कॉलेज आते थे, लेकिन फिर टीचर भी अवेलेबल नहीं होते थे, हालात भी साथ नहीं देते थे। पता नहीं हमारा एग्जाम भी अचानक हो गया, पता नहीं हमारा क्या होगा। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है सर। हम सर रिलैक्सेशन मांगते हैं या फिर हमारा नए से डेट से निकाला जाए। और उरी सरहद के करीब रहने वाले मुकामी अफराद ने हुकूमत से उनके लिए फ़ौरन बुनकर्स बनाने की मांग की है। 4TV नुमाइंदे निसार यादव से मुलाकात करते हुए मुकामी अवाम ने कहा है कि वो सरहद के बिल्कुल करीब रहते हैं, जबकि आए दिन पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है। आपको मालूम है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो उड़ी तहसील है, बुनियाद तहसील है, सरहदी इलाका है, बॉर्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा हमने देखा है जब भी यहाँ पे लोग आते, बाहर से मंत्री आते, यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, हमेशा वहाँ पे जाके बताते हैं कि हम आपको बैंकर्स देंगे, कम्युनिटी बैंकर्स देंगे, इंडिविजुअल बैंकर्स देंगे। लेकिन आज तक अगर ऑन ग्राउंड देखें, किसी को यहाँ पे हमारे इलाके में ये चीज़ें नहीं मिली है। हमने देखा है ये इलाका जो उड़ी वाला हमारा बॉर्डर एरिया है, बुनियाद साइड से पड़ता है, इस एरिया में हमेशा शेलिंग काफ़ी मतलब भारी तादाद में होती रहती है। तो लेकिन सरकार भी इन चीज़ों के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही है। अगर बैंकर्स देने का वादा किया गया है, लेकिन आज तक किसी को बैंकर्स नहीं दिए गएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, जल्द से जल्द ये यहाँ पे इंडिविजुअल बैंकर्स इनको दिए जाए, कम्युनिटी बैंकर्स दिए जाए, ताकि हम लोगों के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ करें और आगे जो मतलब जो डर है लोगों को उस एरिया में फैला, वो डर भी ख़त्म हो जाए। मुँह में जो बॉर्डर्स है हमारे, वहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सतोली माँ का सलूक किया जा रहा है, चलो इधर छोड़ो तो उधर दे दो। तो हर एक जनरलाइज व्यू में हर एक जहाँ पे जो लोग डिजर्व करते, जो लोग बॉर्डर पे रहते, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने का जो है ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है और उनको ऐसा करना चाहिए। हाँ, उड़ी जो एरिया है पूरा का पूरा जो बॉर्डर्स के साथ मुंसलिक है, यहाँ पर सेफ्टी के लिए बैंकर्स न होने के बराबर हैं, एक बात। दूसरी, हम इस पर नाखुश नहीं हैं कि राजौरी, पुंछ, करना, गुरेज में जब इनके लिए बैंकर्स दिए गए जो कि इन इलाकों में रहते हैं, जिनके घरों पर पाकिस्तान का गोला पहले गिरता है, उसके लिए मेरी हुकूमती वक्त से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि इसको अवलीन फुर्सत में एक टीम बनाई जाए। जो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो हैं, GN यत्यू, जो अक्सर इन बॉर्डर्स पर जाया करते हैं, इन ऐसे वाक़ात की खबर पुरसी करते हैं। मसला ये, मैं DC साहब को मिलने आया हूँ उड़ी से। वहाँ पे लोगों को बैंकरों की बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ डेली आया दिन मतलब ये होती रहती है शेलिंग। लोगों को बैंकरिंग की फैसिलिटीज़ है नहीं, जैसे पुंछ रजौरी में डेली फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो इसलिए वहाँ भी बैंकर की तामीरात थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। इसी बारे में DC साहब से मिलने आए हैं और अभी देखते हैं, मिलते हैं DC साहब को इस बारे में बात करने के लिए। आप क्या चाहते हैं? क्या नहीं, लोगों को मिलने चाहिए ना बैंकर, जहाँ पे लोग रैश पजीर हों, अपना मतलब बाल बच्चों को लेके सेव कर सकें। आए दिन वहाँ फायरिंग होती रहती है, लेकिन लोग कब जाएंगे बताइए आप? ऐसी कोई वहाँ है नहीं है सिस्टम है जहाँ पे लोग अपनी मतलब जान बचाएं या अपने बच्चों को सेव कर सकें।
और डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN अदू ने आज यहां अपने ऑफिस चैम्बर में एक खुसूसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रेवेन्यू कमेटी DLRC का जायजा लिया है। इजलास तलब किया और इजलास में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पर गौर खोज किया गया। इजलास में बैंकों और दीगर मुतल्लिका इदारों की मजमूई कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। और संभल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बल्दिया ने लार नाले पर बने गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करवा दिया। बल्दिया के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर बनने वाले 13 दुकानात को मुनहदम कर दिया गया। महकमे के मुताबिक गैर मजाज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। कल से असम में ये इलेक्शन ड्राइव स्टार्ट की है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक इरिगेशन कनाल है जिसको लार कनाल के नाम से जाना जाता है। उस पर लोगों ने एनक्रोचमेंट की थी, उस पर दुकानें बनाए थे। तो आज हम वहाँ पर गए, हमारे साथ महकमे इरिगेशन के ऑफिसरान और बाकी अहलकारान, इसके अलावा हमारे SHO साहब हाजन वो भी स्पॉट पे थे। तो आज हमने 13 दुकानें, कंक्रीट जो दुकानें थे 13, उनको हमने डिमोलिश किया है। इसके अलावा जो लोगों ने तारबंदी की थी या बजरी टीन उसमें खिलाफ वर्जी की, उसको भी हमने वहाँ पर आज मौके पे ही हटाया है। तो ये ड्राइव हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम पूरे इलाके पर अपनी तहसील में जिस कदर भी एनक्रोचमेंट हुई है, चाहे वो स्टेट लाइन पे हो चाहे वो गाशराई पे हो, तो उसको हम खाली करवा के रखेंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मुझे उन लोगों से गुजारिश है जो ये एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दरख्त लगा रहे हैं या कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मेहरबानी करके वो ना करें। जो भी उसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम तहत ज़ब्ता कार्रवाई। और कौन कौन ये डिपार्टमेंट आपके साथ है? हमारे साथ आज था वहाँ पर इरिगेशन जो ये गांधरबल बेसिकली जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन गांधरबल है, उनके अहलकारान थे और SHO हाजन वो भी साथ। शोपियान में एक बैंक गार्ड की हादसाती तौर पर फायरिंग के बाद बैंक गार्ड जाँ बहक हो गया है। कुपन शोपियान में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के अंदर बैंक गार्ड की 12 बोर राइफल हादसाती तौर पर चली गई, जिसमें बैंक गार्ड मजीद अहमद नाइक को जाँ बहक हो गए। गोली चलने के फौरी बाद मजीद अहमद नाइक को जिला अस्पताल शोपियान मुंतकिल किया गया, जहां नाइक को जाँ बहक हो गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज सुबह गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए पाबंद रही। रामबन बानिहाल के दरमियान डुगडोल के मुकाम पर आज सुबह मिट्टी के भारी तोड़े गिर आने की वजह से गाड़ियों की नक्ल हमल कई घंटों तक बंद रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। रामबन बानिहाल के दरमियान अक्सर इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। डगडोल रामबन के मुकाम पर सड़क होने से बंद होने से माल बरदार और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां कई घंटों तक बंद रही। ताहम इंतजामिया की भरपूर कोशिश के बाद ट्रैफिक का बहाल किया गया। कौमी शाहराह का सवाल है और रामबन से बानिहाल तक जो स्ट्रेच है, ये तो बिल्कुल हमें एक समझो मौत का जरिया बन गया है। खासकर हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तो एक बार हम उठ के अपने बच्चों का चेहरा देख लेते हैं शाम को मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो हाल ये है कि आए रोज़ यहाँ हादसात होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है। दोनों साइड से ट्रैफिक को डाल देते हैं और दो तीन दिन ये जाम कंटिन्यू रहता है। और अक्सर देखने में आता है कि हर रोज़ कोई न कोई हादसा इस नेशनल हाईवे पे होता है, लेकिन सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ध्यान। कंपनियों को जो ठेका मिला है उन्हें बैक टू बैक ठेकेदारों को जो नॉन टेक्निकल है, जिनके पास कोई इंजीनियर नहीं है, कटिंग इस हिसाब से करते हैं कि
यानी कि बारिश होने पर पूरा मलबा आ जाता है, उनको क्लीनेंस का पैसा मिलता है और अक्सर ये बिस्लरी और चरला में मलबा डाल देते हैं। कोई इनके लिए कहीं मकिंग की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। बाकी लोगों के लिए तो ये परेशानी। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए पूंछ अस्पताल में मखसूस इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एक मखसूस वार्ड रखा गया है ताकि किसी भी मुब्तला मरीज की इत्तला मौसूल होते ही उसके इलाज और मुआवजे में कोई कोताही ना हो। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आपने सही कहा है कि कोरोना वायरस का आजकल जैसे तहलका मचा हुआ है और एक किस्म की ग्लोबल इमरजेंसी जो WHO ने वो डिक्लेयर कर दी है। तो इसमें यही है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारा यही है कि हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह, जितने स्पेशलिस्ट वगैरह है, जो भी यहाँ पे पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमने उनके लिए ये रखा है कि उनको वो अपना जो अल्कोहल बेस्ड है हैंड सैनिटाइज़र वो यूज़ करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं और एक एक अटेंडेंट पेशेंट को जो है वो हदायत इनको दी गई है कि एक एक पेशेंट को चेक करना है और ज़्यादा भीड़ वाला जो है भीड़ वगैरह नहीं डालनी है। तो उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा कोई सस्पेक्टेड जो है वो केस आ ही जाता है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने क्रिएट किया, बनाया है, वो बिल्कुल फुली इक्विप्ड करके रखा हुआ है वहाँ पे हमने। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जैसे आम ज़ुकाम या बुखार वगैरह या नज़ला टाइप जो सिम्टम्स होते हैं वैसा ही है। तो इसको एज सच जो डिफ्रेंशिएट करना के उससे तो वो नहीं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी की हिस्ट्री है जो चाइना से आया है या बाहर वाले कंट्री से आया है, अगर उसको इस किस्म के अलामात ज़ाहिर होते हैं तो कुदरती बात है कि उसको हम लोगों ने फिर आइसोलेशन में रखना है वहाँ पे और उसके नेज़ोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल स्वैब्स वगैरह लेके लैब टेस्ट के लिए पुणे में। बीबी बाग कोलगाम के रिहायशियों ने पानी की किल्लत और आलूदगी के लिए महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे PHE इलाके में पानी की फराहमी की बहाली में नाकाम हो चुका है। उन्होंने बताया कि वहां पर मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत इंतहाई खराब है। वाटर सप्लाई मुर्दाबाद, PHE मुर्दाबाद, वाटर सप्लाई मुर्दाबाद, PHE मुर्दाबाद, PHE मुर्दाबाद। गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमत वाला जो DC साहब है, डिप्टी कमिश्नर कुलगामा से, हमारा यहाँ इतना प्रॉब्लम है PHE की, खासकर की पानी की। यहाँ से हमारे 4 मजकुरा के गांव में 4 पाइप लाइन उतरते हैं, महलाए बादमबाग, महलाए लाबड़पोरा, महलाए यहबाग, महलाए खालिकशून। किसी पाइप लाइन में कोई पानी हमने देखा नहीं है। यहाँ के औरतों को तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। जब वहाँ से जाते हैं हम इतना डांट और इतना गाली गुलेज पड़ते हैं। हम हुकूमत वाला DC साहब से अर्जन गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके कि हमारा यहाँ पे मजकुरा के गाँव में जो यहाँ पे खेत है तकरीबन 40 कनाल से 50 कनाल वहाँ हमने खेती दी है हमारे में, मगर सैनिस गाँवस आब फेड़ कहें क्या सानी वुडर मज पावर यह आब तस नसा वातान कहें बोड़ बड़ा 3 गरन आब बाकी सोरे गाँव बेकार पावर ग्रिड ये मीटर दूर आब गो आब बना अवे मूजूब गुजारिश कर मेहरबानी कर कुन तो सियासत दीतो आब फिर क्या त्रेश दाम खातर तरसान मेहरबानी कर वात यह कत हुकामन पे तो गो आब फेड़ वात वनस 500 चुल गाँव 500 चुलन मन वनस 3 गरन आब बाकी सोरे अलग बाखुदा यह
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आसाम के अवाम को ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि मुखालिफ आसाम और मुखालिफ मुल्क ज़हनियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कोकराझार में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बाज़ ताकतें शहरियती तरमीमी क़ानून को लेकर शुमाल मशरक़ी रियासतों में अफवाहें फैला रही हैं कि बाहर के लोग यहाँ आकर मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन वो यकीन दिलाते हैं कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि शुमाल मशरिक़ में ही हज़ारों लोग तशद्दुद की वजह से अपने ही मुल्क में पनाह गज़ीन बन कर रह गए हैं, अब उन्हें वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बोर्ड्स के साथ हुए मुआहदे को तारीख़ी करार दिया और माओइस्टों के अलावा जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी हथियार छोड़कर बोर्ड्स की तखलीद करने पर जोर दिया। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने राहुल गांधी के डंडे वाले रिमार्क का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की मोहब्बत और ताईद डंडों से उनकी हिफाजत करेगी। ये आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। साथियों, यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मैंने असम में लंबे समय तक यहां के लोगों के बीच एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। छोटे छोटे इलाकों में मैंने दौरा किया हुआ है और अपने प्रवास के दौरान जब अपने साथियों के साथ बैठता था, चलते जाते, तो हमेशा भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के लोकप्रिय गीत की पंक्तियां यहां के साथियां, हमारे सब साथी अक्सर सुनाता करते थे। और भूपेन हजारिका, मेरा एक विशेष लगाव भी है उनके साथ। उसका कारण है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और भूपेन हजारिका, भारत रत्न भूपेन हजारिका मेरे गुजरात के दामाद है। इसका भी हमें गर्व है। और उनके बेटे, उनके बच्चे आज भी गुजराती बोलते हैं, असमिया भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, और इसलिए गर्व होता है। और जब मैं सुनता था कि गोटई जीवन बिसारी लेऊ, गोटोई जुबेन बिसारी लेऊ, अलेख दिवख राती, अहम देहर दरे ने पाऊं, ईमान रहाल माटी। असम जैसा प्रदेश, असम जैसी माटी, यहां के लोगों जितना अपनापन मिलना वाकई अपने आप में बड़े भाग्य की बात है। मुझे पता है यहां के अलग अलग समाज के लोग संस्कृति, भाषा, भूषा, खान पान इतने समृद्धि है। आपके एस्पिरेशंस, आपके सुख दुख, हर बात की भी मुझे पूरी जानकारी है। जिस प्रकार आपने सारे भ्रम समाप्त कर, सारी मांगे समाप्त कर, बोडो समाज से जुड़े साथी साथ आए हैं, मुझे उम्मीद है और पीडीपी के रुकन पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे ने जम्मू कश्मीर में तरक्की की हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए नज़ीर अहमद लावे ने कहा है कि 6 महीने से कश्मीर में तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर वादी कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है। वादी के अवाम को इस फैसले से काफ़ी नुकसान हुआ है।
कैसे देखते हैं? देखिए, आपको पता है कि पिछले 6 महीने से यही बता रहे हैं कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट है। वहाँ तो जीरो ऑन ग्राउंड जो मैं एक सिंगल MP हूँ जो सारे कश्मीर को घूमता है पिछले 6 महीने से। मुझे 2-3 दिन जाने नहीं पड़ा वहाँ, उसके बाद तो मैं हर घर घूमता हूँ, लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वहाँ ऑन ग्राउंड। और हमारा जो फ्रूट था, जो हॉर्टिकल्चर था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोगों को बड़ा नुकसान हो गया। लवे साहब थोड़ा बताएंगे PSA होता क्या है और कैसे लगता है? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये वहाँ ड्रैकोनियन एक्ट है। ये जब जंगल स्मगलर होते थे वहाँ कश्मीर में, ये बहुत पहले 84 में, तो उस वक्त ये PSC लगाया था इसलिए कि शेख साहब ने कि ताकि जो जंगल चोर है वो हमला करते थे, हमारे जो वहाँ पर मुलाजिम थे फर्श के, उन पर हमला करते थे। उस हमले को रोकने के लिए और उन जो जंगल चोर थे उनको सेफ्टी एक्ट के तहत 3 महीने, 6 महीने और 1-2 साल बंद किया जाता था। लेकिन आज हमारे लोगों को लगा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, ये बदकिस्मती है। और हमारी इतनी बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी इस तहत ड्रैकोनियन केस के तहत बंद किया जा रहा है। ये कहा कि ये तो मिलिटेंट नहीं है, ये तो देशद्रोही नहीं है, ये तो मेन स्ट्रीम। कल तक ये चीफ मिनिस्टर थे, कल तक महबूब जी BJP में सरकार चला रही थी, तो आज तो वैसे वो कैसे मिलिटेंट बन गए, वो कैसे देशद्रोही बन गई। लिहाजा इसको देखना पड़ेगा सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी तरमीमी कानून की दस्तूरी हैसियत और आसाम मुआहदा 1985 में अमल आवरी के चैलेंज की जाने वाली दरख्वास्तों पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी की है। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली बेंच ने इस दरख्वास्त को उसी मामले से जुड़ी दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हफ्ते को होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र शाहीन बाग मामलों की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस संजय किशन कूल और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने जुमा को वकील अमित साहनी और BJP के साबिक रुकन असम्बली नंद किशोर गर्ग की अर्जियों की समाअत ये कहते हुए पीर तक के लिए मुलतवी कर दी कि वो इस मामले की समाअत उस दिन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगी। गर्ग की जानिब से पेश वकील शशांक देव सोधी ने बेंच के सामने दलील पेश की है कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात कल होने वाले हैं। उस पर जस्टिस कोल ने कहा कि बिल्कुल सही समझा आपने, इसलिए समाअत पीर को ही होगी। अर्जियों में कहा गया है कि शाहीन बाग में जारी एहतजाजी मुजाहरे की वजह से दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अर्जी में एहतजाजी मुजाहरों और धरनों की वजह से लगने वाली मुकम्मल पाबंदियों के सिलसिले में वसी और मुकम्मल हिदायत तय करने का मुतालबा किया गया है। तो दूसरी तरफ शाहीन बाग में एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकील अमित साहनी ने बताया है कि शाहीन बाग के एहतजाज से आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अदालत ने उसका जायज़ा लिया है और फिर मौजूदा अमन और क़ानून की सूरत हाल को देखते हुए कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी किया है। उनका कहना था कि अदालत का ये भी एहसास था कि चूँकि दिल्ली में इंतखाबात होने वाले हैं, अमन और क़ानून बरकरार रहने चाहिए। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। इसको मानते हुए पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे ताकि इलेक्शन सुनिश्चित सही ढंग से किए जा सकें और इस पूरे मामले को नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को रख दिया है। और पुनिवा कोलगाम के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक नौजवान मोहम्मद रफीक बदफवत हो गया है। रिश्तेदारों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। रिश्तेदारों और इलाके के तहसीलदार का कहना था कि मोहम्मद रफीक भट्ट को 12 बजे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 3 बजे तक उन्हें किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा, जबकि कुछ ही देर बाद मोहम्मद रफीक भट्ट फवत हो गया। तहसीलदार और रिश्तेदारों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बंदोबस्त करें, मगर उसके पास कोई आया नहीं। हम इस अस्पताल को मिलियामेट करेंगे। बजे के बाद हम इनके पास तकरीबन 50 बार गए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। इमरजेंसी में हमने इसको बेड पर बिछा दिया। 50 आदमी सिविल वहाँ इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन अस्पताल के अमले का एक भी आदमी न वहाँ आया, न उन्होंने देखा जब तक इसकी डेथ हो गई। कोई सामने नहीं आया, नहीं सुनते हैं। इन्होंने 2:30 बजे ये प्राइवेट क्लिनिकों में फीस भर के रखा है, वहाँ इनके पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल में अगर कोई ये कहेगा कि 2:30 बजे पे यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल था, जो मर्जी कह दो। बाकी हमारे पेशेंट की उसका तो रिस्क खत्म हो गया था, उसको ये बचाने वाले नहीं थे। ये कसाई है कसाई। लेकिन हमारी हौसला अफजाई के लिए अगर एक डॉक्टर वहाँ आ जाता तो हमारे को भी ये महसूस नहीं होगा। हम कहेंगे ये ऊपर वाले लिखा था, लेकिन कोई नहीं आया। ये चोर है, ये सेमो। यहाँ पे जो मुझे शिकायत मिली कि यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। एक पेशेंट था, उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको 12 बजे लोगों के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया। 12 बजे के बाद उन्होंने शिकायत की कि उसको 3:30 तक किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा। बार बार उन्होंने इल्तिजा की कुछ डॉक्टरों से, लेकिन कोई नहीं आया उसको देखने के लिए। तो अटेंडेंस रजिस्टर हमने जब्त की और प्रिलिमिनरी तौर पर पाया गया कि कुछ डॉक्टर्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटीज पाए गए। अब इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें मुलविस पाएगा, जो ड्यूटी पर गैर हाजिर थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। शुक्रिया सर। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया इस्मत रेजी और कत्ल मामले के चारों मुलजिमीन को अलग अलग फांसी ना दिए जाने से मुताल्लिक़ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया इस्मत रेजी मामले के मुजरिमीन की फांसी के बारे में ये रिमार्क किया है कि जब कानून उन्हें जिंदा रहने की इजाज़त देता है तो उन्हें फांसी पर लटकाना क्या मुमकिन है। दिल्ली की अदालत ने मुजरिमीन की फांसी की नई तारीख के सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ निर्भया की वालिदा आशा देवी ने कहा है कि अदालत को इख्तियार है और हम इंसाफ का इंतजार करेंगे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं फिर एक नजर। प्रताप पार्क पर ग्रेनेड हमले के इल्जाम में 7 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने कहा वालिदैन अपने बच्चों पर रखें खास नजर। एलजी मुर्मू ने श्रीनगर में अवामी दरबार में दी हाजिरी। लोगों के मसाइल की समाअत, तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का दिया तयक़ुन। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मुल्क मुखालिफ और आसाम मुखालिफ ज़हनियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोकरा झाड़ में वज़ीर आज़म का खिताब। कुपवाड़ा के मुकामी नौजवानों का जयपुर में बेरहमाना कत्ल। रिश्तेदारों ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। इसी के साथ ही कश्मीर बुलेटिन खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।